Hello and welcome to the very first episode of Spill the Raita. This is Mitali and with me I have Palak. आज हम हमारे चैनल का पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं एंड बिफोर वी स्टार्ट दीदी व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स या फिर हम अपने चैनल के बारे में बताएं. व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट विद? I think first we should tell the audience about our channel कि Spill the Raita में वो क्या expect कर सकते हैं. Why the name Spill the Raita? So या basically मिताली और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है and biryani is like always accompanied with raita. So Mitali came up with the name कि Spill the Raita नाम रखते हैं. तो basically it is a podcast. जिसमें मिताली और मैं एवरीडे लाइफ स्ट्रगल्स की बात करेंगे जैसे कि बॉडी पॉजिटिविटी और वर्क प्लेस ड्रामा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और ऐसे ऐसे ही इन्हीं लेवल्स पे और भी टॉपिक्स पे बात होगी. Yeah, and trust me, those who are listening us right now, कि ये planned नहीं था. We were just talking randomly one day. I was ranting to her about something, और इन्होंने मुझे बोला कि यार मिताली हम जो ऐसे ये rant कर रहे हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, I think हमें कुछ करना चाहिए इसमें से. बहुत सारे लोग होंगे जो शायद relate करेंगे. So the idea came from nowhere. It was just two sisters who were talking, और हमने सोचा चलिए आज हम हमारा पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं यहाँ पे. So we are always in the 9 to 5 cycle we are just floating. So मैं सोच हाँ रही थी कि जो हम आपस में बात करते हैं वो क्यों ना ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए ताकि वो भी रिलेट कर पाए कि हाँ यार ऐसा हमारे साथ भी होता है. And there is absolutely no one who is talking about it. And so basically Spill the Raita, you can expect unfiltered talks with some emotional honesty. So we are going to touch upon topics जिससे आप definitely relate कर पाएंगे and all we need is your love and support. And before that, we would like to tell the audience about us and where are we coming from, starting with you, Mitali. Okay, so I come from Valley. I am born and brought up in different cities, but I am originally a Kashmiri Pandit. Right now, I am in Hyderabad and I'm working with an edtech here. I'm 25 years old और मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, एक्सप्लोर करना. Yeah, that is a little bit about me. Why don't we start with you, Didi? Yeah, sure. So I'm from Udaipur. After marriage, I relocated to Gurgaon. अभी I'm working as a brand manager और 2 महीने पहले ही मैंने मेरी content creation journey चालू करी on Instagram by the handle name it's Palak Chhabra and I have been creating content around fashion styling. Basically मैं चाह रही थी कि जॉब के अलावा ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे, जो जिसके लिए आपको मन करे कि let's like create something new. So like I just delved into it and ये podcast भी हमने 2 दिन पहले ही सोचा था कि हम start करते हैं and I'm really happy कि today we are recording our first episode because generally क्या होता है कि अपन कुछ सोचते हैं और फिर वो रह जाता है. It's always at the back end कि okay देखते हैं and time नहीं है and all of that. कि अगर Yeah. हमने सोचा है वो हम करके रहते हैं. अगर हम इन दोनों ने कुछ सोचा है कि नहीं हमको यहाँ पे जाना है, हमको Basically यहाँ हम लोग एग्जैक्टली तो हम लोग इतना वाइब करते हैं तो हमें लगा यार कि चलो कुछ साथ में स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, थोड़ी मोनोटनी भी ब्रेक होगी. और इनफैक्ट अगर जो हमें लोग सुन रहे होंगे आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 8-9 सालों से ही जानते हैं. I met Didi when I was in first year of my college. She was doing her masters. We met in Pune, and that is how we met. ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. हाँ मतलब हम ऐसा स्टेज पे मिले हैं when two of us were becoming, there was a transformation होता है ना, ट्रांजिशन कहते हैं उसे. उस फेज में हम मिले हैं और हम तब से एक दूसरे के साथ है. वी हैव सीन ईच अदर इन अप्स एंड डाउन्स. शी नोज मी इनसाइड एंड आउट. कुछ भी जो भी हुआ है कहीं पे भी हुआ है शी विल नो. एंड शी नोज कि अगर मिताली का ऐसा मूड है तो उसको उस समय क्या चाहिए. There are very few people who know this and I am very glad that you are one of those. तो अगर मैं rant कर रही होती हूँ it is very difficult कि सामने वाले को समझ आए कि अरे ये जो प्रॉब्लम बता रही है क्या इसका सोल्यूशन इसको देना है, क्या इसको बस सुनाने के लिए कोई चाहिए.
क्या है, to that figure it out, मतलब ऐसा जो स्टेज होता है, it is very difficult for people to understand. But with you when I talk, I know कि कुछ भी नहीं होगा, you will understand कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मुझे क्या सुनना है, मुझे सोल्यूशन सुनना है, कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए. तो that is one of the things that I really like about us. एग्जैक्टली सो मैं यही ऑडियंस को बताना चाह रही थी कि हम लोग रूमीज थे सिम्बियोसिस में इन पुणे एंड मिताली आउट ऑफ नोवेयर केम टू माय रूम एंड शी वाज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर रूममेट और उस टाइम आई वाज हैविंग द एंटायर रूम टू माय सेल्फ देयर वर 3 बेड्स एंड मैंने सारा मेरा तीनों बेड्स पे सामान फैला हुआ था. फ्री शेयरिंग का कमरा आपका था पूरा. So yeah, and like एक होता है ना कि you just click, like I was not ready to accommodate anyone, like because I'm a big introvert. So मुझे लग रहा था यार कोई क्यों आ गया. I still remember जब मैं आपके पास आई थी, I went to the warden, I went to Nisha ma'am and I asked her that I want to move to some other room, तो आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ जा सकते हैं. So she gave me 3 room options कि आप इन फ्लोर्स पे जाके जा सकते हो. So I was like okay fine, I will go check the room, but ऐसा कौन सा रूम है जो आप सजेस्ट करोगे? You know me well, you have seen me 2-3 months in, so you tell me कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. Then she's like okay fine, why don't you go to the second floor, 207 में आप जाइए, आप इनसे मिलिए. इनका नाम पलक है. शी इज 4 years elder to you. You also हाँ. remember the room number? Okay, okay, go ahead. तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप जाइए, शी इज अ नाइस गर्ल, यू विल लाइक हर. पढ़ती रहती है ये हमेशा, और मतलब हंसने वाली है, तो यू विल लाइक हर. आई वाज लाइक ओके फाइन, आई वेंट. इट वाज अ संडे आफ्टरनून. हाँ, मैंने नाश्ता वाश्ता किया था कायदे से एकदम. मैं अपना पेट भर के ऊपर जा रही थी एंड आई नॉक्ड एट हर रूम थिंकिंग कि हाँ इस टाइम पे तो लोग उठ ही जाते हैं. तो आई वेंट, आई नॉक्ड. इन्होंने दरवाजा खोला है, बिल्कुल थोड़े से स्पेस में से इन्होंने अपनी मुंडी बाहर निकाली है और इन्होंने बोला यस आप कौन? मैंने बोला आई एक्चुअली वांट टू टॉक टू यू, ऐसे ही बोला था मैंने इनसे. और इन्होंने बोला या श्योर, एंड शी क्लोज द डोर एंड देन शी ओपनड इट. और फिर इतना छोटू सा ऐसे उसमें से निकल के बाहर आई, दरवाजे को ऐसे पीछे बंद कर दिया और बोला हाँ यस टेल मी नाउ. एंड देन आई एम टेलिंग हर कि इज इट ओके इफ आई शिफ्ट हियर, आई एम स्टार्टिंग दिस. उन्होंने बोला हाँ ठीक. एंड आपने भी मुझे से हाँ बोल दिया. यू वर नॉट लाइक अरे मैं सोचती हूँ नहीं, गो टू सम अदर रूम ना. Couldn't have refused, no, I couldn't have because कोई भी होता मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि it was a hostel. मेरा खुद का कोई private flat नहीं था कि I can tell people नहीं नहीं यहाँ मत आओ. So, but like fortunately, like I met Mitali when I was in my second year of MA, and I was really glad कि ऐसी भी roommates generally क्या है मेरा experience वहाँ पे अच्छा नहीं रहा था with other roommates I had. So मुझे एक regret भी है कि मैं मिताली से like second year में जाके मिली and so fast forward so basically हम लोग काफी फर्स्ट ईयर में मिल भी नहीं सकते थे क्योंकि मैं तो पुणे में ही नहीं थी. Okay, okay, all right. So we spent a little time together, but वो little time जो भी था वो काफी precious था. Like हमने काफी कुछ हमारे food habits से लेके हमारा interest से लेके like our love for dance and like our creativity and सब कुछ इतना match होने लगा कि हमने बाद में भी हमारा जो relation है वो continue रहा even after we passed out. Yeah, I remember I used to go for my volleyball practice. सुबह जाती थी और शाम को आती थी and I used to usually come late. तब तक हमारा मेस बंद हो जाता था और मेन डोर भी बंद हो जाता था, हमारा जो मेन गेट था. तो मेरे लिए खाना वो लोग रखते थे and then I used to eat and come back. कभी-कभी mostly she would sleep early. तब मेरा जो स्टडी टेबल था वहाँ पे there will be always like a small बाउल or something, वहाँ पे कुछ मीठा सा रखा होगा. और if she has gone out or if she knows that I'm going to study after that, so she'll make a Maggie also for me. उसमें भी इनको पता था कि हाँ मेरे को वैसा गीली वाली पसंद है या मुझे वो ऐसा जो सॉलिड बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती है वैसी वाली. And there used to be always a note there कि I have made this is for you, eat. And then So, like I didn't realize that I started treating Mitali as my little sister. जब भी वो हॉस्टल से कहीं बाहर होती थी और लेट नाइट नहीं आई होती थी, I would give her a call that like a mommy, like
where are you and why aren't you home yet? Not call me after 10 o'clock to know कि मैं कहाँ पे हूँ. She would call me and be like, मिताली कहाँ पर हो, कितना टाइम लगेगा. एंड इफ आई हैव एक्सटेंडेड दैट टाइम लाइन और मैं गलती से 1-2 मिनट लेट हूँ, तेरे तूने बोला था कि तू आधे घंटे में आने वाली है, तेरा आधा घंटा हुआ नहीं अभी तक. So, I'm very punctual on that note. If it's 7 p.m., it is 7 p.m. It cannot be 7:15 or 20. नहीं हो सकता है. 7 means 7. So, this is how I am. And we are still like this, people at work, they call me calendar, कि एक बार आपने मुझे बोला है तो वो उसी समय होगा, आगे पीछे कहीं नहीं होगा. So if something has to be done, we have to gather people, tell मिताली, वो कर देगी. आई थिंक ये हाथ जो आदत है, इट ऑल्सो हैज, मतलब जो इसका इन्फ्लुएंस हुआ है स्कूल तक तो हाँ बेशक था, कॉलेज लाइफ में इन्फ्लुएंस आपकी साइड से हुआ है कि So, it's good to be punctual and disciplined. वो लाइफ में हर जगह काम आता है. हाँ. I think so. तो मिताली is a Gen Z and I'm a millennial. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमें, लेकिन like कुछ सालों का है. एंड उसके वजह से मिताली मुझे आज भी दीदी बुलाती है. मैंने उसको बहुत बार बोला है कॉल मी पलक, बट इट कैन नॉट जस्ट हैपन फॉर हर. I have not tried calling her पलक. मैंने बहुत ट्राई किया है, बट एवरी टाइम आई कॉल हर, मेरे को ना अगर ऐसा बोलेंगी हाँ मिताली चलो अभी पलक बोला, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं आता बोलना. मतलब इट इज स्टिल हियर, आई जस्ट कांट से इट. मेरे को लगता है नहीं यार बड़ी है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, आप मास्टर्स कर रहे थे, तो आई वाज लाइक अरे दीदी कितना पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा है, मास्टर्स पढ़ा है, इतने बड़े लोग को मैं नाम से कैसे बोल सकती हूँ. या आई गेट दैट फीलिंग. सो ऐसी बहुत सी खट्टी मीठी यादें हैं जो वी कैन गो ऑन एंड ऑन. इसका कोई एंड ही नहीं है. Here, Yeah, so we wanted to start the first episode like by introducing ourselves and also telling the audience about Spill the Raita and what they can expect in the upcoming episodes. So for now, like we will just wind it up, and for the next episode, like you can expect it every Thursday. We will be coming out with a new video, and stay tuned. Over to you, Mitali. thank you so much everyone for watching today, for coming today and giving us your support. बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, जैसे दीदी ने आपको बताया है. ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर अवेयर व्हेनेवर वी अपलोड. Exactly, and please do comment also so that we know कि आपको हमारा content कैसा लग रहा है और how excited you are, so that हम उस हिसाब से हमारा content drive करेंगे, so it will help us in creating really good content. Yeah. तो इसी नोट पे आई थिंक वी कैन एंड टुडेज एपिसोड. Yes, all right. Bye. Everyone, see you soon.